پروگرام سلام جے کے دیکھنے والے سبھی ناظرین کو ہماری طرف سے خلوص برا اور پیار برا آداب ہو، گڈ مارننگ ہو، السلام علیکم ہو۔ سامعین ناظرین، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ اس پروگرام میں ہم ملک کی اہم ترین سیاسی معاملات سے آپ کو روبرو کرانے کی کوشش کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ ریاست جموں کشمیر کی ہر چھوٹی بڑی خبر سے آپ کو واقف کرانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس وقت جب آپ شدید سردی کے بیچ چائے کی چسکیاں لے رہے ہیں اور دفتر جانے کی تیاری کر رہے ہیں، جو لوگ نارتھ انڈیا سے ہمارے اس ٹرانسمیشن کو دیکھ رہے ہیں تو ان کے لیے یہ خبر بھی اچھی نہیں ہے کہ باہر دھند بھی کافی زیادہ ہے۔ حصار کی بات کریں، دلی کی بات کریں، پنجاب کی بات کریں تو دھند کا اثر جو ہے آپ کو کافی زیادہ نیشنل ہائی وے کے ساتھ ساتھ دیگر راستوں پر دکھے گا۔ اور اسی طریقے سے جموں کشمیر کے ناظرین کے لیے بھی خبر یہ ہے کہ کل تو شدید سردی تھی، برف باری ہو رہی تھی، لیکن امید ہے کہ آج بعد دوپہر تھوڑا سے معاملات بہتر ہوں گے۔ لیکن تیار ہو جائیے، 19 کے بعد ایک بار پھر موسم کا پارا اور موسم کا مزاج بدل سکتا ہے۔ تو یہ سارے معاملات، جہاں موسم کا مزاج ہمارے ساتھ رہے گا اور بھی کچھ معاملات رہیں گے، لیکن ترقیاتی منظرنامے اور سیاسی منظرنامے پر کیا کچھ ریاست کے اندر چل رہا ہے، ان سبھی معاملات پر گفتگو ہم آج ضرور کریں گے۔ لیکن سب سے پہلے آپ کو ذرا خبر سے اپڈیٹ کرواتے چلے کہ ایک بار پھر پیٹرول اور ڈیزل کے داموں میں اضافہ ہو رہا ہے اور باضابطہ طور پر پچھلے کئی دنوں سے لگاتار ہم دیکھ رہے ہیں کہ 2 پیسے 4 پیسے کر کے پیٹرول اور ڈیزل کی داموں میں جو ہے وہ اضافہ ہو رہا ہے اور باضابطہ طور پر آج رات دیر گئے پھر سے پیٹرول اور ڈیزل کے دام جو ہے وہ بڑھ چکے ہیں اور پیٹرول اور ڈیزل کے جو دام بڑھ چکے ہیں اس کے مطابق فی الحال 14 پیسے جو ہے وہ پیٹرول کے اندر اور اسی طریقے سے جو ہے ڈیزل کے اندر 19 پیسے جو ہے وہ بڑھانے کی بات دلی کے اندر ہو چکی ہے۔ اور اسی کے ساتھ ممبئی کی اگر ہم بات کریں، 14 پیسے اور 20 پیسے بڑھانے کی بات بالترتیب جو ہے ڈیزل اور پیٹرول میں بڑھانے کی بات جو ہے وہ سامنے آئی ہے۔ تو بات سیدھے ہے، پچھلے کئی مہینوں سے جن دنوں ہم دیکھ رہے تھے کہ پچھلے کئی مہینوں میں کافی زیادہ ہنگامہ اس بات پر ہو رہا تھا کہ نہیں بڑھنا چاہیے، اس کے بعد سرکار نے اور خود وزیر اعظم صاحب نے اس پر بات کی تھی اور کوشش ان کی یہ رہی تھی کہ کسی نہ کسی طریقے سے پرائس کو کنٹرول میں رکھا جائے اور جو موڈ بگڑا ہوا تھا لوگوں کو اس کو سیٹ کیا جائے، کیونکہ 5 راجیوں کے اندر چناؤ تھے اور چناوی دنگل ختم ہونے کے ساتھ ہی ایک بار پھر آہستہ آہستہ کر کے 14 پیسے 15 پیسے کر کے پچھلے کئی دنوں سے پیٹرول اور ڈیزل کے دام بڑھنا شروع جو ہے وہ ہو گئے ہیں۔ تو فی الحال اس ہفتے میں تیسری بار میں یہ خبر بتا رہا ہوں کہ پیٹرول اور ڈیزل کے دام جو ہے وہ بڑھے ہیں۔ پیٹرول اور ڈیزل کے داموں کے ساتھ ساتھ ذرا خبر بتاتے ہیں سپریم کورٹ کی، کیونکہ اس کا اثر ریاست جموں کشمیر کے ساتھ بھی گاہے بگاہے ہو ہی جاتا ہے۔ کیونکہ گزشتہ دنوں پچھلے سال میں جب ہمارے لیے نئے ڈائریکٹر جنرل پولیس جموں کشمیر کے لیے چننا تھا اور ایس پی وید صاحب نے ہٹایا گیا تھا انہیں اور دلباغ سنگھ صاحب کو لگایا گیا تھا، تو معاملہ سپریم کورٹ تک بھی لے جانا پڑا تھا، کیونکہ سپریم کورٹ کی گائیڈ لائنز یہ ہے کہ ایک سیٹ نارم اور کرائٹیریا انہوں نے دیا ہے اور کہا ہے کہ اگر آپ نے ڈائریکٹر جنرل پولیس کو اپوائنٹ کرنا ہے تو اس کے لیے کیا کچھ آپ نے کرنا ہے اور کون سی لوازمات جو ہے وہ آپ نے پوری کرنی ہے۔ اور اسی چیز کو دیکھتے ہوئے کچھ ریاستوں کی طرف سے جو ہے وہ سپریم کورٹ کے سامنے درخواست چلی گئی تھی، جس میں یہ درخواست کی گئی تھی کہ جس طریقے سے سپریم کورٹ نے یہ کہا ہے کہ جب بھی آپ نے کسی بھی ڈائریکٹر جنرل کو تبدیل کرنا تو اس کے لیے کرائٹیریا اور نارمز جو ہے وہ آپ نے فالو کرنے پڑیں گے اور 2 سال کے ٹینیور سے پہلے آپ نہیں ہٹا سکتے اور سلیکٹ کمیٹی کے سامنے وہ پینل سارا جائے گا، اس کے بعد فیصلہ ہوگا۔ تو اس پر نظر ثانی کرنے کے لیے پنجاب، ہریانہ، ویسٹ بنگال، کیرلا اور بہار کی حکومتوں کی طرف سے ایک عرضی جو تھی وہ سپریم کورٹ کے سامنے تھی، جس پر کل رنجن گوگئی صاحب جو چیف جسٹس آف انڈیا ہے ان کی طرف سے کلیئر کیا گیا کہ جو فیصلہ اس سے پہلے دیا گیا ہے اس کو برقرار رکھا جائے گا اور جو ریفارمز کے نام پر 3 جولائی 2018 کو سلیکشن پینل کے حوالے سے بات کہی گئی ہے اس میں کسی قسم کی ترمیم یا تبدیلی نہیں ہوگی، باضابطہ طور پر اسی چیز کو فالو کیا جائے گا۔ یعنی بات اب صاف ہے کہ اب کوئی بھی ریاست ہو بشمول جموں کشمیر، اگر آپ نے کسی بھی وقت ڈائریکٹر جنرل پولیس کو تبدیل کرنا ہے تو آپ کو پہلے وہ سارا کرائٹیریا فالو کرنا ہوگا جس کرائٹیریا کی بات ہم پچھلے کئی سالوں سے سن رہے تھے، لیکن اب سختی کے ساتھ اس کی عمل آوری جو ہے وہ ہو رہی ہے۔ تو بات ذرا 2 خبریں ہم جیسا کہ ہم پچھلے کئی دنوں سے کوشش کرتے ہیں کہ 2 خبریں ایسی بتائیں جن کا تعلق ریاست سے تو نہیں ہے لیکن ملک کی اہم ترین خبروں سے ہو، تو یہ 2 خبریں تھیں وہ جن کا تعلق
آج کے پروگرام کے ساتھ. تو اب جب بڑھتے ہیں وادی کشمیر کی اور بتائیں گے آصف آپ کو کہ موسم کا مزاج کس طریقے کا رہا ہے. جی آصف. بالکل، اگر اس ہفتے کی بات کریں تو پہلے جو کچھ دن پہلے برف باری اور بارش کا سلسلہ شروع ہوا تھا، بیچ میں 2 سے 3 دن لوگوں کو کافی راحت ملی، اور جموں کشمیر خاص طور سے اگر وادی کی بات کریں تو زیادہ تر علاقوں میں اچھی دھوپ کھلی رہی. اس کا اثر میدانی علاقوں میں بھی دیکھا گیا تھا، ٹھنڈ سے کافی حد تک راحت ملی. لیکن کل رات دوبارہ ایک بار پھر جو بالائی علاقوں میں برف باری کا سلسلہ شروع ہوا تھا، تاہم کل دن کو اگر بات کی جائے یہ برف باری تھم گئی، لیکن اس کا سیدھا اثر جو ہے دوسری ریاستوں میں بھی دیکھا گیا. جموں کے میدانی علاقوں میں دیکھا گیا، کشمیر کے ان حصوں میں دیکھا گیا جہاں پہ بارش بھی برف باری کے ساتھ ساتھ ہوئی. اور خاص طور سے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا سیدھا اثر جو ہے عام زندگی پر پڑتا ہے. اور آپ کو ہم کئی بار بتا چکے ہیں کہ وادی میں جو ہے چلائے کلان کے جو 40 کڑاکے کی ٹھنڈ جو ہے 40 دن رہتی ہے، وہ جو ہے سیزن وہ بھی چل رہا ہے. اور اس بیچ جموں سری نگر قومی شاہراہ پر اور خاص طور سے سری نگر لیہ قومی شاہراہ ٹریفک کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو موسم کا سیدھا اثر ٹریفک پہ بھی رہتا ہے. اور کل کی اگر بات کریں تو کل رات کو جو برف باری ہوئی اس کا اثر جموں سری نگر قومی شاہراہ پہ تو نہیں پڑا، ایک طرفہ ٹریفک جو ہے وہ چل رہا ہے. لیکن دوسری طرف اگر ایئر ٹریفک کی بات کریں تو کئی پروازیں جو ہیں وہ کل منسوخ کرنی پڑی سری نگر ایئرپورٹ سے. بالکل، وادی میں چلائے کلان چل رہا ہے اور وادی میں برف باری اور کشمیر کا بیرونی دنیا سے زمینی اور فضائی رابطہ کل کچھ دیر کے لیے منقطع ہو گیا تھا اور 22 پروازیں منسوخ کرنی پڑی تھی. 22 پروازوں میں پہلی 2 پروازیں جو صبح آئی تھی وہ آ چکی تھی، 22 پروازیں جو منسوخ کرنی پڑی تھی. علاقے میں بجلی اور پانی سپلائی متاثر ہوئی ہے کیونکہ شدید سے درمیانہ درجے کی بارشیں اور برف باری کا سلسلہ جو ہے وہ چل رہا تھا. سڑکیں زیر آب، موسم میں آج شام تک بہتری آنے کے امکانات ہے. محکمہ موسمیات کی طرف سے یہ بات کہی گئی اور یہ کہا گیا ہے کہ 19 جنوری سے بھاری برف باری کی پیشن گوئی. محکمہ موسمیات کا ماننا ہے کہ 19 جنوری سے ایک بار پھر وادی کے اندر برف باری جو ہے وہ ہو سکتی ہے. وادی کے سبھی اضلاع میں بدھ کی صبح سے جاری برف باری کے نتیجے میں کشمیر کا بیرونی دنیا سے زمینی و فضائی رابطہ منقطع ہو چکا ہے. ادھر سری نگر جموں شہرہ کو متعدد مقامات پر بھی برف کی موٹی اور برف کی چادریں جو ہے وہ جمع ہوئی تھی، تاہم سپہر تک شہرہ پر معمول کے مطابق یک طرفہ ٹریفک جاری رہا. ادھر باری برف باری اور دھند کی وجہ سے سری نگر ایئرپورٹ پر کسی بھی پرواز کو اڑنے کی اجازت نہیں دی گئی اور نہ ہی کوئی پرواز ریاست سے وادی کی اور آئی. ادھر محکمہ موسمیات نے اپنی تازہ ایڈوائزری میں 19 جنوری سے میدانی اور بالائی حصوں میں باری برف باری کی پیشن گوئی کی ہے، تاہم انہوں نے واضح کیا ہے کہ بدھ کی شام تک موسم میں بہتری آنے کے قوی امکانات موجود ہے. اس دوران تازہ برف باری کے نتیجے میں شہر و دیہات میں سڑکوں پر پھسلن پیدا ہوئی ہے، جس کے نتیجے میں لوگوں کو عبور و مرور میں کافی مشکلیں درپیش آ رہی ہے. جبکہ اسی دوران باری برف باری کی وجہ سے شہر سری نگر سمیت دیگر اضلاع اور قصبہ جات میں سڑکیں زیر آب آ چکی ہیں، جس کے نتیجے میں راہگیروں کو چلنے پھرنے میں سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. ادھر محکمہ ٹریفک پولیس نے ڈرائیور حضرات کے نام ایڈوائزری جاری کرتے ہوئے کہا کہ گاڑی چلانے کے دوران احتیاط برتنے کی اپیل کی ہے. وادی کشمیر کے سبھی اضلاع میں بدھ کی صبح سے شروع ہوئی تازہ برف باری کے باعث کشمیر کا بیرونی دنیا اور فضائی رابطہ جو ہے وہ منقطع ہو چکا ہے. لیکن جہاں ہم آپ کو یہ بات بتا رہے ہیں وہیں آپ کو یہ بھی بات بتاتے چلے کہ ایڈوائزری جو جاری کر دی گئی ہے وہ صوبائی کمشنر کی طرف سے بھی جاری ہوئی ہے اور جس میں کہا گیا ہے کہ ایولانچ وارننگ جو ہے وہ 9 اضلاع کے اندر دے دی گئی ہے، جس میں اننت ناگ، کلگام، بڈگام، بارامولہ، کپواڑہ، بانڈی پورہ، گاندربل، کرگل اور لیہ اضلاع ہے. اور وہاں کے بالائی علاقوں میں رہنے والے لوگوں سے کہا گیا ہے کہ وہ احتیاط برتے. یہ صوبہ انتظامیہ کی طرف سے جو ہے وہ بات سامنے رکھی گئی ہے. ادھر باری برف باری کی وجہ سے کل ایک سکول کا چھت گر گیا ہے اور یہ سکول کا چھت جو ہے وہ کنگن گاندربل کا علاقہ ہے جہاں پر سکول کا چھت گر گیا ہے، جس کی وجہ سے سکول کو بھاری نقصان ہوا ہے. اور ایس ڈی ایم کنگن کے مطابق اب یہ بلڈنگ جو ہے یہ انسیف ڈکلیئر کر دی گئی ہے اور اب سرما کے بعد جب دوبارہ
स्कूल कॉलेज खुलेंगे तो वहां पर उसके बाद फैसला लिया जाएगा कि किस तरीके से आगे इसको वहां पर दरसी निजाम कहां पर चलाया जाएगा। तो बात मौसम के मिजाज की हो रही है और 19 तारीख से एक बार फिर बर्फबारी होगी। हमारे साथ सईद रूफ फारूकी श्रीनगर से ज्वाइन कर चुके हैं ताजा तरीन तफसीलात के लिए। सईद रूफ फारूकी, क्या कुछ ताजा तरीन खबर आपके पास है? कल सुबह से ही हल्की से दरमियाना दर्जे की बारिशें और बर्फबारी हमने रियासत के अंदर देखी है, वादी के बालाई और मैदानी इलाकों के अंदर देखी। आज सुबह सुबह मौसम का मिजाज किस तरीके का है? देखिए गवर, अगर आज के मौसम की बात करें तो आज अभी मौसम ठीक ही है, अभी कोई बर्फबारी नहीं हो रही है, बस काफी धुंध है। अगर देखा जाए तो आसमान पूरी तरह साफ नहीं है, तो ऐसा लग रहा है कि फिर से बर्फबारी हो सकती है। जहां तक महकमे मौसमयात की बात की तो उन्होंने कहा कि 17 और 18 को तो बर्फबारी नहीं हो सकती है, क्योंकि 19 की शाम को बर्फबारी होगी और वो भारी बर्फबारी हो सकती है। उन्होंने कहा कि काफी ज्यादा बर्फबारी हो सकती है मैदानी और पहाड़ी इलाकों में। इस वजह से जो रास्ते हैं वो बंद पड़े, अभी से ही वो रास्ते बंद पड़े हैं। थोड़ी बहुत बर्फबारी अगरचे हुई है, मगर सड़कों पे काफी फिसलन है, जिसकी वजह से लोगों को चलने फिरने में तकलीफ हो रही है। और जो इंतजामिया ने जो लोगों को कहा कि वो एहतियात बरते इस हवाले से कि जो 19 के बाद बर्फबारी होगी, घरों से वो ज्यादा बाहर ना निकले, क्योंकि अवलाज। सईद रूफ, कल हमने देखा था कि 27 परवाजें मनसूख हो गई थी, 4 परवाजें सुबह की आ रही थी, उसके बाद कोई परवाज नहीं आ पाई। आज परवाजों की क्या कुछ सूरत हाल है और क्या कुछ अथॉरिटीज की तरफ से बात सामने कही गई है? देखिए गवर, अभी तक तो कोई परवाज गई नहीं है, क्योंकि मैंने कहा कि अगरचे बर्फबारी नहीं हो रही है, मगर आसमान पे काफी धुंध है, साफ पूरी तरह नजर नहीं आ रहा है, तो उस वजह से शायद अभी परवाजें नहीं जा सकती हैं। अगर वक्त गुजरने के साथ साथ मौसम क्लियर हो सकता है तो फिर शायद परवाजें जा सकती है। और जो नेशनल हाईवे है, रोड है, वो भी बंद है, तो उस वजह से काफी सारी परेशानी है लोगों को, क्योंकि कल हमने देखा एयरपोर्ट पे काफी सारा हुमामा में काफी सारे लोग वहां पे थे, फंसे थे, जाम था, जिनको जाना था यहाँ से बाहर रियासतों में, तो वो लोग भी वहां पे थे। और कुछ लोग जो शाम देर गए थे वो फिर वहीं पे उन्होंने रात गुजारी है कि शायद कल यहाँ से फ्लाइटें जा सकती है तो वो जा पाएंगे, बट अभी ऐसा कुछ कह नहीं सकते हैं कि फ्लाइटें जा सकती है नहीं। अगर एक चीज और बताइएगा सईद रूफ, वो ये है कि जिस तरीके से कल बर्फबारी हुई है, जैसा कि हमारे पास खबर है, हमारे न्यूज रूम को भी ये खबर मिली है कि बालाई इलाके और फॉरफ्लंग एरिया जो हमारे कुपवाड़ा के है, साधना टॉप, जड़गली और आसपास के इलाकों के साथ साथ जो पहाड़ी इलाके हैं, शोपियां का इलाका है या श्रीनगर के बालाई इलाके जो है, वहां पर बर्फबारी की वजह से सड़कें मुनक़ता हो गई है, सड़कों पर आमदरफ्त जो है वो मुनक़ता हो गया है। और बर्फबारी हटाने के सिलसिले में इंतजामिया ने जो वादे किए थे वो फिलहाल शराबी साबित हो रहे हैं। तो क्या पूरी तरह से बर्फ रात को ही हटाई गई थी? देखिए गौर, ये तो आप दूर दराज इलाकों की बात करते हैं, हम तो शहर श्रीनगर की बात करें कि कहीं से कोई बर्फ हटी नहीं थी। फिर गाड़ियों को इस वजह से दुश्वारियां आई कि गाड़ियां चली और काफी मुश्किलात गाड़ियों को हुई चलने में, क्योंकि सड़कों पे बर्फबारी थी। अभी की बात करें, कोई बर्फबारी जो कल की बर्फ थी वो वैसे ही है, सड़कों से उठाया नहीं गया। शायद इनको ये था कि कम बर्फ हुई है, उस वजह से उन्होंने मशीनरी का इस्तेमाल नहीं किया है। जो मेन रोड्स हैं वहां पे बर्फ नहीं हटाई गई है, तो जो आप अंदरूनी सड़कों की बात करोगे या दूर दराज इलाकों की बात करोगे, कुपवाड़ा, बाकी इलाकों की शुपियां, बाकी शहर श्रीनगर बडगाम रोड या बाकी जो रोड है उन पे बर्फबारी थी, जो कल पड़ी थी वो है अभी भी, उनको भी हटाया नहीं गया। रूपा साहब बने रहिए, अपने नाजरीन को जरा हम बताते चले कि जो हमारे पास एदाद शुमार फिगर्स आए हैं वो क्या है। श्रीनगर में कल ज्यादा से ज्यादा 5.4 मिलीमीटर बर्फबारी रिकॉर्ड की गई है। पहलगाम के अंदर 8.5 मिलीमीटर, कुपवाड़ा के अंदर 10.2 मिलीमीटर, कोकरनाग के अंदर 1 मिलीमीटर। ये सरकारी तौर पर आंकड़े जो है वो जारी किए गए महकमे मौसमियात की तरफ से। लेकिन कल ही खबर ये आई कि बहुत से इलाकों के अंदर बिजली गुल, यानी जब भी बर्फबारी होती है तो सबसे पहला विक्टिम जो है वो बिजली होती है, पीडीडी डिपार्टमेंट होता है। तो क्या रेस्टोरेशन वर्क शुरू हो गया? क्योंकि कल शहर के साथ साथ दीगर अजला से भी यह खबर लगातार आ रही थी कि बिजली की आंख मचोली लगातार जारी है। देखिए गौर, बिजली की आवाज से जो यहाँ पे पहले कुछ दिन पहले बर्फबारी हुई थी उसके बाद तो कई इलाकों में अभी तक जो बिजली की सप्लाई उसको रेस्टोर नहीं किया गया है। और जो ही कल ये कुछ इंच
यहाँ पे बिजली ये बर्फबारी हुई है, उसके बाद तो बिजली गायब ही रही। काफी सारे इलाकों में अगर सिर्फ रात देर गए बिजली को रेस्टोर किया गया है, मगर अभी भी ऐसे गांव हैं जहाँ पे बिजली नहीं है। और आपने खुद देखा होगा कि जो सोशल नेटवर्क साइट है वहाँ पे लोग लिख रहे हैं कि 1-2 इंच के अंदर पीडीडी डिपार्टमेंट दब गया है। तो ये पीडीडी की हालत है। जो इंतजामिया कहती है कि पहले ही तैयार रहते हैं कि ऐसे हालात के लिए, मगर पूरी तरह प्रिपरेशन नहीं होती है। खाली शायद जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं या जो डिवीजन इंतजामिया होते हैं वो मीटिंगों के जरिए या कागजी तौर पर कहते हैं कि हम तैयार हैं ऐसे हालात से निपटने के लिए, मगर जमीनी सतह पे वो वैसी तैयारी नहीं होते हैं। उस तरह हालात को काबू में नहीं किया जा सकता। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। फिलहाल सुबह से मौसम का मिजाज थोड़ा सा बेहतर है कल के मुकाबले में, क्योंकि कल सुबह ही बर्फबारी का नज़ारा जो था वो वादी कश्मीर के लोगों को देखना पड़ा था और पहाड़ी और मैदानी इलाकों में रहने वाले लोगों को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। धुंध ज़रूर है, जैसे मैंने पहले ही कहा था, आज सुबह नॉर्थ इंडिया के मुख्तलिफ इलाकों से यही खबर थी कि धुंध है। धुंध की वजह से रफ्तार, जो जिंदगी की रफ्तार है वो भी धीमी पड़ी हुई है और वादी कश्मीर के बालाई और मैदानी इलाकों में धुंध की वजह से मौसम का मिजाज भी बदला हुआ है और फिलहाल बर्फबारी नहीं है, लेकिन 19 के बाद एक बार फिर बर्फबारी की खबरें जो है वो आ रही है। तो पहले ही जिस तरीके से प्रिडिक्ट किया गया था, पहले ही ये पेशेनगोई की गई थी महकमा मौसमियात की तरफ से कि वादी में जो है 2 दिन मौसम ठीक रह सकता है। हालांकि कल जो है बाद में कई इलाकों में देखी गई कि धूप खिली, लेकिन साथ ही साथ बादल भी कई इलाकों में छाए रहे और ऐसे में ठंड भी काफी रही। आज भी उम्मीद है कि मौसम में बेहतरी रह सकती है, लेकिन कल साथ ही साथ मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की तरफ से जो पहले भी कहा गया था और कल इस बात को दोहराया गया कि 19 तारीख से अगले 5 से 6 दिनों तक जो भारी बर्फबारी हो सकती है और ऐसे में लोगों को तैयार रहना होगा। और एडवाइजरी, जैसा कि आप पहले बता चुके हैं कि कुछ ऐसे वादी के कुछ ऐसे अजला है जहां पे अवलॉन्च भी आ सकता है। पिछले दिनों बांडीपुरा में भी एक ऐसा वाक़ा हुआ, लेकिन अच्छी खबर यह थी कि किसी जान माल का नुकसान नहीं हुआ। जो पानी की पाइपलाइंस थी उनको थोड़ा बहुत नुकसान हुआ था, जिससे कुछ इलाकों में पानी की सप्लाई ठप होकर रह गई थी। कल दूसरी तरफ मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की तरफ से क्या कुछ कहा गया वो भी आपको हम बताते हैं। रियासत के खास करके कश्मीर, वादी कश्मीर में और लद्दाख के चंद जगहों में, खास करके कारगिल डिस्ट्रिक्ट में, ज़ंस्कार रीजन और द्रास वगैरह में हल्की बर्फ हो रहा था, तो अभी भी चल रहा है हल्की बर्फ। तो ये रहेगा आज शाम तक जो है पूरा ओवरलूड रहेगा, क्लाउडी यानी ओवरकास्ट रहेगा। बीच बीच में अभी बर्फ भी होंगे, खास करके नॉर्थ ईस्ट कश्मीर जैसे बंदीपुरा, गंदरबाल एंड सेंट्रल कश्मीर के श्रीनगर एंड सराउंडिंग एरिया में हल्की बर्फबारी होने का इम्कान है। पहाड़ी इलाकों में नॉर्थ कश्मीर के हल्की से लेके दरमियान दर्जे को चंद जगहों पे हेवी स्नोफॉल का भी इम्कान है, जैसे अभी बंदीपुर से कुछ जगहों पे हेवी स्नोफॉल का भी इम्कान है। लेकिन 24 घंटे के बाद कल यानी कि 17 और 18 को मौसम अमूमन ठीक ही रहेगा। बीच बीच में बादल रहेंगे, बिल्कुल क्लियर नहीं होगा। तो 19 को भी क्लाउडी रहेगा। 19 को बल्कि अगेन 19 से लेके 23 तारीख तक यानी 3-4 दिन एक स्नो स्पेल है, जो कि मैदानी इलाकों में भी दरमियाने दर्जे की बर्फ देंगे। चंद जगहों पे हेवी स्नोफॉल भी हो सकता है। तो अभी हम इसको मॉनिटर कर रहे हैं। चलिए, महकमा मौसमियात का बात क्या थी वो हमने आप तक पहुंचाई। जरा आप बात करते हैं तरक्याती मंजरनामे की और बात करते हैं उस बड़े प्रोजेक्ट की जिसको लेकर यूपीए 2 में सियासत हुई थी और ये कहा गया था कि यूपीए 2 ने जम्मू कश्मीर के 2 बड़े इलाके वादी लद्दाख यानी पूरे सूबे लद्दाख को पूरे मुल्क के साथ जोड़ने के लिए एक बहुत बड़ा मंसूबा हाथ में लिया था जोजिला टनल के हवाले से। और उस वक्त से ये मामला जो है वो जेरे सियासत रहा और मुख्तलिफ बातें जो है वो इस पर कही। राहुल गांधी से लेकर कांग्रेस के कद्दावर नेताओं तक बात हुई और ट्वीट और जलसे हुए और उसके बाद खुद वजीर आजम साहब भी इस की इनॉग्रेशन के लिए वहां पहुंचे, इसके फाउंडेशन स्टोन डालने के लिए पहुंचे और यह कहा गया कि जोजिला टनल जो है जो हर एक एतबार से काफी अहम है, इसको मुकम्मल किया जाएगा और 2025 तक इसको आमदरफ्त के माकूल बनाया जाएगा। और वजीर आजम साहब ने जब 2016 में इसका संग बुनियाद रखा तो उस वक्त डेडलाइन मुकर्रर की गई और यह कहा गया कि हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में जोजिला टनल को मुकम्मल करना है। लेकिन बदकिस्मती के साथ रियासत जम्मू कश्मीर के लिए यह खबर है कि जोजिला टनल फिलहाल नहीं बनेगी, क्योंकि जिस कंपनी को यह काम सौंपा गया था
IL&FC वो दिवालिया हो गई थी। पिछले दिनों भी हमने इस पर बात की थी, अगरचे कंपनी की तरफ से जरूर ये एश्योरेंस दिया गया था कि हम जरूर इस पर काम करेंगे और कुछ मॉडलिटीज को तय भी करने की बात हो रही थी, लेकिन अब ऑफिशियल खबर हम आपको बता रहे हैं कि जो इंडिया की सबसे बड़ी टनल बनने जा रही थी 14.2 किलोमीटर 14.2 किलोमीटर लंबी टनल जो बाई डायरेक्शनल टनल बनने वाली थी, ये अब बिल्कुल नहीं बनेगी। और इस सिलसिले में जो IL&FC है उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर मरकजी हुकूमत को एक खत भेजा है जिसमें उन्होंने मुआज़रत जाहिर की है। यूनियन गवर्नमेंट ने टेंडर्स फ्लोट किए थे तीसरी बार जोजिला टनल को बनाने के हवाले से, इससे पहले 2 बार हुआ था, लेकिन फाइनेंशियल क्रंच और दीगर मामला की वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस IL&FC ने यह पूरा मामला जो है वो सरेंडर कर दिया है। 6,809 करोड़ रुपए का यह मामला था जो उन्होंने सरेंडर किया है। नेशनल हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने इसे ओन किया था और बिडिंग प्रोसेस के लिए सामने रखा था और उसके बाद जोजिला टनल पर 14.2 किलोमीटर की जो लंबी टनल है इसको श्रीनगर ले हाईवे पर बनाना था। और ये इसलिए अहम थी, अगर ये टनल बनती तो शायद इससे 12 महीने नहीं तो कम से कम 7-8 महीने ट्रैफिक की आमदरफ्त जो है वो करगिल के लिए, लेह के लिए, करगिल के लिए जो है वो जा सकती थी और स्ट्रेटेजिकली जो आर्मी पॉइंट ऑफ व्यू से थी उससे भी ये अहम थी और लोकल एतबार से अगर आप देखें, इस पूरे एतबार से अगर आप देखें तो ये काफी अहम थी। इससे कबल नितिन गडकरी साहब ने भी इस पर मुदाखलत की थी और उनने IL&FC को कहा था कि वो माली मामलत कुछ फराहम करेंगे, वो इस काम को हाथ में ले, लेकिन अब बात यही है कि ये मामला फिलहाल फिर से खटाई में पड़ा है। सबसे पहले UPA 2 में जब NDA की गवर्नमेंट हुआ करती थी उस वक्त IRB इंफ्रास्ट्रक्चर्स को ये काम 2016 में सौंपा गया था और उसके बाद उस टेंडर को खत्म कर दिया गया था और ये कहा गया था कि अब ये काम जो है वो IL&FC करेगी, IL&FS करेगी, लेकिन IL&FS ने भी आज अपने हाथ खड़े कर दिए हैं और उन्होंने कहा कि यह मामला नहीं हो सकता है। हम कोशिश कर रहे हैं कि सजाद करगिली साहब हमारे साथ जुड़े ताकि इस पर मजीद हम बात कर सके कि अब इस पर आने वाले दिनों में सियासत किस तरीके से हो सकती है, क्योंकि रियासत के लिए ये प्रोजेक्ट जो है अगर आप करगिल के एतबार से देखेंगे, लद्दाख के एतबार से देखेंगे तो ये प्रोजेक्ट जो है वो काफी अहमियत का हामिल था, लेकिन फिलहाल खबर यह है कि IL&FS ने ये टनल बनाने से माजरत दी है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं और उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर मरकजी हुकूमत को अपने फैसले से आगाह किया है, यानी अब दोबारा टेंडर प्रोसेस होगा, उसके बाद किस कंपनी को ये दिया जाएगा और मेरे ख्याल से अब ये और डिले, ये जो 2025 का इसमें डेडलाइन था शायद ये और भी डिले हो सकता है, क्योंकि फिलहाल खबर इसी तरीके की आ रही है। तो ये डेवलपमेंटल पार्ट पर हमारी बदनसीबी है कि जो खबर हम बता रहे थे कि ये काफी अहम है टनल, ये फिलहाल अब नहीं बनेगी। 2016 से मामला सुर्खियों में था, 2017 में वजीर आजम साहब ने फाउंडेशन डाला था और 2019 में इस पूरे प्रोजेक्ट को कैंसिल किया गया है। चलिए हम जरा बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं तवी की, जम्मू कश्मीर के एक और मामले की करते हैं बात, क्योंकि दरियाए तवी एक इंतहाई अहम और हसास तवी है, दरिया है जम्मू के लिए, जम्मू के एतबार से, और जहां मजहबी एतबार से उसको देखा जाए तो काफी अहम है, और अगर इसको आप अपने एतबार से देखें यानी स्टेट के एंगल से देखें तो स्टेट के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी ये काफी अहम है और स्टेट के प्रॉपर्टीज में भी इसको गिना जाता है। लेकिन वहां पर इलीगल माइनिंग का सिलसिला लगातार जारी है, यानी पत्थर, रेत, बाजरी निकालने का सिलसिला वहां काफी अरसे से जारी था और बाज़ाब्ता तौर पर इसकी गूंज स्टेट असेंबली के अंदर भी सुनाई दी गई थी, जिसके बाद साबिका हुकूमतों ने भी इस पर रोक लगाने की बात कही थी और कुछ दिनों तक पुलिस का अमला भी तैनात किया गया था। लेकिन रेत माफिया और सैंड माफिया इतना खतरनाक है कि पुलिस की नाक के नीचे से रात और दिन हर वक्त वो अपना काम करते रहे, जिसके बाद मामला अदालत आलिया में चला गया और अदालत आलिया के डिवीजन बेंच ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए जियोलॉजी एंड माइनिंग डिपार्टमेंट के साथ साथ रियासती पुलिस को यह हुक्मनामा जारी किया था कि दिन तो दिन और रात को भी अब निगरानी होनी चाहिए, यानी 24/7 निगरानी होनी चाहिए और किसी तरह से कोई इलीगल
काम वहां पर नहीं होना चाहिए था। चंद दिनों तक अगरचे इस हुक्मनामे की अमलावरी देखने को मिली, लेकिन अब खबर यह है कि तवी से दो हाथों से ये बाजरी ये और मामला जो है वो निकाला जा रहा है, चाहे रेत है, बाजरी है, पत्थर है, ये निकाले जा रहे हैं और अब रात के अंधेरे में ये सारा काम चलता है, डिस्पाइट द फैक्ट कि जियोलॉजी एंड माइनिंग डिपार्टमेंट की तरफ से चेक पोस्ट भी तैनात किए गए हैं, लगाए गए हैं और पुलिस का नाका भी रहता है। नाकों और चेक पोस्ट के बावजूद भी अगर ये काम होता है तो सवाल ये उठता है कि हमारी इंतजामिया की गफलत शारी कितनी है। एक तो ये है और दूसरा मामला ये है कि अब इस तवी के ऊपर से एक इंतहाई अहम प्रोजेक्ट की रफ्तार जो है वो चल रही है, यानी वो रोपवे प्रोजेक्ट जिसको लेकर जम्मू के अंदर काफी सालों से सियासत हो रही थी और उस रोपवे के मुख्तलिफ टावर्स जो है वो इस तवी के अंदर से होते हुए गुजरते हैं और यही वजह है कि लोगों का मानना है कि अब इसको और ज्यादा सख्ती के साथ लिया जाए और ज्यादा बेहतरी के साथ उठाया जाए ताकि ये जो टावर्स है इनको कोई नुकसान ना पहुंचे। शाहिदीन और मुबस्सिरीन का मानना है कि टावर्स के आसपास से रेत बाजरी निकालने का सिलसिला दिन में और रात में लगातार जारी है। पुलिस की नाक के नीचे से काम किया जा रहा है और जियोलॉजी एंड माइनिंग डिपार्टमेंट की खामोशी है। क्या हुकूमत कोई काम करेगी, यानी गवर्नर साहब से लेकर क्या ये उस अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी तो नहीं है जिस अदालती हुक्मनामे की बात लगातार हम कर रहे हैं। हमारे साथ विनोद कुमार जी हमारे सीनियर न्यूज एडिटर इस वक्त जुड़ चुके हैं इस खबर पर मजीद बात करने के लिए कि किस तरीके से वहां की सिविल सोसाइटी और किस तरीके से ये माफिया जो है वो काम कर रहा है, डिस्पाइट द फैक्ट कि डिवीजन बेंच की डबल हियरिंग के बाद ये जो डिसीजन जो सामने आया था। विनोद जी बहुत शुक्रिया हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। तभी हर एतबार से इंपॉर्टेंट है, रिलीजियस पॉइंट से देखें तो इंपॉर्टेंट है, स्टेट के पॉइंट से देखूं तो इंपॉर्टेंट है। अब इंपॉर्टेंट प्रोजेक्टों की टावर्स वहां से बन रहे हैं, लेकिन इलीगल सैंड और बाजरी निकालने का मामला है वो तो पहले दिन में था, अब रात में भी शुरू हो गया है। क्या खबर है डिटेल में और क्या कुछ कार्रवाई होने की उम्मीद है? देखिए, बीच में वक्त ये कार्रवाई करते हैं लेकिन जितना एक्शन लेना चाहिए वो एक्शन नहीं लिया जा रहा है और 2016 में एक PIL दायर की गई थी, उसकी डायरेक्शन डबल बेंच ने ये डायरेक्शन दी है कि यहाँ पे एक्सट्रैक्शन का काम जो है एक्सट्रैक्ट करने का काम बंद कर दिया जाए, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ एक माफिया जो काम कर रहा है वो पुलिस के साथ मिलजुल करके हैंड पे ग्लो करके निकाल रहा है या जो कहे कि वहाँ पे जो खनन है उसको निकाल रहा है। की वजह से जो रोपवे प्रोजेक्ट बना था अभी वो कंप्लीट तो हो चुका है लेकिन ऑफिशियली उसकी इनॉग्रेशन नहीं हुई है, ट्रायल रन दिया जा चुका है। उसके पोल बिल्कुल साफ नजर आ रहे हैं कि वो नीचे से खाली होते जा रहे हैं। इस तब बचाओ आंदोलन भी एक लंबे समय से वो लोग काम कर रहे हैं लेकिन सुनवाई नहीं हो रही है। विनोद जी हम दोबारा आपके पास लौटेंगे क्योंकि आपकी आवाज जो है वो साफ हम तक नहीं पहुंच पा रही है, इसलिए तकनीकी वजूहात की बिना पर यहां पर आपको ड्रॉप कर रहा हूं। दोबारा आपके पास आऊंगा एक और खबर को लेकर। फिलहाल बड़ी खबर जो हम आपको बता रहे हैं, सफाई का मामला अपनी जगह, विजुअल्स आपको बता रहे हैं कि तवी की हालत कितनी खराब है। इसको साफ करने के हवाले से तो अपना प्रोजेक्ट काम करे न करे उस पर सवाल तो उठेंगे ही उठेंगे। ब्यूटिफिकेशन ऑफ तवी अबेंडमेंट्स जो थे वो अपना एक प्रोजेक्ट था, लेकिन उस पर काम कितना हुआ आपके सामने विजुअल से जो ये बता रहे हैं कि सरकार के बुलंद बांग दावे कितने सराब साबित हो रहे हैं। लेकिन इस बीच अब बड़ा सवाल जो है वो ये है कि जो इंपॉर्टेंट काम रोकना था जिसको लेकर डिवीजन बेंच ने हुक्मनामा जारी किया था उस हुक्मनामे पर अमल आवरी नहीं हो रही है और उम्मीद यह है कि इस खबर के नशर होने के बाद सूबाई इंतजामिया जम्मू का जो वो मुतहरिक होगा और स्पेशली पुलिस डिपार्टमेंट की नींद टूटेगी और कार्रवाई वो यहां पर करेंगे। यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकेंगे। ब्रेक के उस पार जब आएंगे तो आपको बताएंगे कि जो मुख्तलिफ मेंबरान कानून साजिया है यानी पार्लियामेंट मेंबर्स है उन्होंने एक एक गांव को अडॉप्ट किया था। उस गांव में जम्मू कश्मीर के गांवों का क्या हाल है, आज एक पार्लियामेंट मेंबर का रिपोर्ट कार्ड, छोटा सा रिपोर्ट कार्ड आप आपके सामने रखेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए और आपको बताएंगे कि रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में किस तरीके से दो हाथों से लूटा जा रहा है। पब्लिक की मनी जो आवाम के लिए जाती है उसे किस तरीके से दो हाथों से लूटा जा रहा है और कहां पर लूटा जा रहा है। इसके लिए आपको हमारे साथ रुकना पड़ेगा क्योंकि मुलाकात होगी आपके साथ एक छोटे से तिजारती वक्फे के बाद, और वक्फे के बाद जब आएंगे तो दोनों खबरों पर तफसील के साथ बात करेंगे।
सर्दी, खांसी, जुकाम एक आम बात है। ऐसे में लीजिए 100% आयुर्वेदिक मुल्तानी कुका कॉफ सिरप, ताकि बदलते मौसम के साथ आप न बदलें। फास्टर है तो है 25% फास्टर चार्जिंग और बैकअप, लिव फास्ट इन्वर्टर और बैटरी। फास्टर है तो है। सारी साफ सुथरी चीजें सेहत के लिए अच्छी हो ये जरूरी नहीं, लेकिन हमारी सेहत से जुड़ी सारी बातें निश्चय ही शुद्ध होनी चाहिए। उसी प्रकार लायन डेट्स हमारी सेहत का ख्याल रखने वाले डेट्स को दुनिया में पहली बार तकनीकी मदद से बिना हाथों से छुए स्वच्छ प्रकार से पैक किया जाता है। लायन डेट्स, आखिर स्वच्छता ही सेहत की पहली सीढ़ी है। एंड्योरा मास्क की मदद से सही वजन पाकर पाया नया कॉन्फिडेंस, पाई नई पर्सनैलिटी। एंड्योरा मास्क, बरसों से बेहतरीन, बरसों से भरोसेमंद वेट गेनर। सर्दी, खांसी, जुकाम एक आम बात है। ऐसे में लीजिए 100% आयुर्वेदिक मुल्तानी कुका कॉफ सिरप, ताकि बदलते मौसम के साथ आप न बदलें। ब्रेक के बाद आपका फिर से इस्तकबाल प्रोग्राम सलाम जेके में, जो आप इस वक्त नई दिल्ली के स्टूडियो से बराह रास्त देख रहे हैं। और अब जरा बात करते हैं रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की कि किस तरीके से मफाद आमा में जो काम करने थे, किस तरीके से उन्हें साइडलाइन करते हुए इलीगल तरीके से पैसा निकाला जा रहा है। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि लगातार पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया पर इस तरीके की खबरें आ रही है। और सोशल मीडिया के साथ साथ जो हमारे न्यूज रूम को इतलात मौसूल हो रही हैं, उसके मुताबिक बालाई इलाके जो हैं, स्पेशली जम्मू सूबे के जो बालाई इलाके हैं, मडवा, दच्छन, डोडा, बदरवा, बसोली, और ये पूरा बेल्ट जो है जहां पर बर्फ तो पड़ती है और बर्फ पड़ने के बाद शायद ही कोई अफसर वहां की ओर जाता हो और ग्राउंड वेरिफिकेशन कर रहा हो कि जो उस काम को लेकर उसे कहा जा रहा है कि काम हुआ है, क्या वो काम हुआ है या नहीं हुआ है। इन सभी एरियाज के लोगों की ये शिकायत है कि हमें तो कहा जा रहा है कि काम हो रहा है, लेकिन काम हुआ ही नहीं है, पैसे निकाले गए। क्या कुछ खबर है, आपको बताएंगे आसिफ। जी बिल्कुल, पिछले कई सालों से हमने देखा कि लगातार इस तरह की खबरें सामने आती थी कि रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट जो रूरल एरियाज में जो तरक्याती काम है उन पर नजर रखता है। सरकार की तरफ से कई ऐसी योजनाएं हैं, कई ऐसी स्कीम्स हैं जिनको जमीनी सतह पर लागू करने की कोशिश की जाती है, और इसी डिपार्टमेंट के पास बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, जिसके तहत बहुत सारे गरीब और हकदार लोगों तक उनके जो हक है उसको पहुंचाने की बात तो की जाती है। लेकिन पिछले कुछ वक्त से ऐसी खबरें सामने आई थी कि इसी डिपार्टमेंट के कई जगहों पे ऐसे एम्प्लॉयज हैं जो खास तौर से आम और ऐसे लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है जो अनपढ़ हैं, यानी वो लोग जिनके जॉब कार्ड्स बने हुए हैं इसी डिपार्टमेंट के अंडर। बहुत सारे लोगों के कार्ड्स बनाए गए थे जिन्हें उस कार्ड की बिना पर उसके जरिए उनको काम मिलते थे, लेकिन कई जगहों पे ऐसी जो शिकायत मौसूल हुई है, जो हमारे पास खबर है, दूर दराज के खासतौर से इलाके, वहां पे जो आरडीडी के जो एम्प्लॉयज हैं उनकी तरफ से बहुत सारे लोगों के नाम पे उनके कार्ड्स इस्तेमाल करके फंड्स का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन जो जमीनी हकीकत है, जो काम है, वो आज तक नहीं हुए। और अब ऐसी ही शिकायत कुछ जो किश्तवाड़ जिले से भी हमारे पास आई है, वहां पर मड़वा ब्लॉक में भी एक बार फिर इस तरह की बातें सामने आई कि जो जॉब कार्ड होल्डर्स थे, जिनके नाम पे जॉब कार्ड्स बनाए गए थे, उनके नाम पर लाखों करोड़ों रुपए जो हैं वो निकाले गए हैं। लेकिन जो काम हमने ऐसा देखा है कि सर्दियों में अक्सर जिस तरीके से आपको इशफाक गौहर ने भी बताया कि जैसे ही बर्फबारी और बारिश का सिलसिला शुरू होता है, विंटर सीजन शुरू होता है, तो अधिकारी जो आला ऑफिसर्स होते हैं आरडीडी डिपार्टमेंट के, बहुत कम देखा गया है कि वो रूरल एरियाज का दौरा करते हैं, वहां पे इन कामों का जायजा लेते हैं, या कई ऐसी बिल्डिंग्स बन रही होती है, रास्ते बन रहे होते हैं, गलियों और नालियों का काम चल रहा होता है, लेकिन बहुत कम देखा गया कि आला ऑफिसरान। हमारे पास जो खबर आ रही है मड़वा वड़वन दक्षिण ब्लॉक जो डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ के अंदर है, वो उसमें कहा जा रहा है कि मनरेगा के तहत जो काम किया गया है उसमें काफी ज्यादा बेजाब्ती किया है, और महकमा जो है उनकी नोटिस में लाने के बावजूद भी मामला जो है वो ठीक तरीके से नहीं हो रहा है। इस खबर को नशर करने का मकसद सिर्फ इतना सा था कि सूबाई इंतजामिया की नोटिस में इन गरीब आवाम की आवाज पहुंचे और कोई कार्रवाई हो, ताकि इन बालाई इलाकों में भी अबूर मरूर के रास्ते बने, क्योंकि मनरेगा एक ऐसा स्कीम था जिसको इंप्लीमेंट अगर सही तरीके से किया जाता रियासत के अंदर तो शायद हालात कुछ और ही हो सकते थे। तो बात जरा ये हो रही थी आरडीडी डिपार्टमेंट की, और चलते चलते आपको ये बताते चले कि जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक दावा पेश किया और कहा है कि गांधरबल जिला में एक नौजवान को उन्होंने बचा लिया है,
اور بچانے کی پیشکش جو ہوئی تھی, وہ بچانے کی جو بات ہوئی تھی وہ اس لیے سامنے آئی ہے کیونکہ وہ ملیٹنسی کی اور جا رہا تھا اور انہیں پچھلے کئی دنوں سے اس کو ٹریک کیا جا رہا تھا. ان کی فیملی کی مدد سے اس کو کاؤنسل کیا گیا, اس کی کاؤنسلنگ کے بعد انہیں واپس گھر بھیج دیا گیا. پولیس کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ یہ کارروائی آگے بھی جاری رکھی جائے گی. جو لوگ ملیٹنسی کے راستے کو ترک کر کے واپس اپنے گھروں کو لوٹنا چاہتے ہیں, پولیس اس کے لیے ہر ممکن مدد اور تعاون فراہم کرے گی. بات گاندربل ضلع کی آ رہی ہے جہاں پر ایک نوجوان کو کاؤنسلنگ کے بعد واپس گھر والوں کو سونپ دیا گیا, جس کے بارے میں یہ کہا جا رہا تھا کہ شاید وہ ملیٹنسی کو جوائن کرنے والا تھا. اب ذرا بات کریں گے ہم جی ایس ٹی کے حوالے سے, کیونکہ جی ایس ٹی کا اطلاق جن دنوں بڑا تھا, جن دنوں ہوا تھا, اس کے ساتھ ساتھ حج سبسڈی اور حج کے معاملات بھی زیر بحث جو تھے وہ لگاتار آ رہے تھے. لیکن کل مرکزی وزیر برائے حج اور اقلیتی امور کی طرف سے نئی دلی کے اندر ایک پریس کانفرنس, ایک تقریب کا اہتمام کیا گیا, جس کے اندر یہ کہا گیا کہ اب حج کے اندر جو جی ایس ٹی تھا اسے بہت کم کر دیا, یعنی 18% سے 5% پر کو لایا گیا ہے, جس کی وجہ سے حج کرایہ میں کافی کمی جو ہے وہ واقع ہوگی اور کل ملا کر 113 کروڑ روپیہ جو ہے وہ حج جو ہے وہ بچے گا. اس پر جو ہمارا اس پر ٹیکسز پر لگ رہا تھا تقریباً 113 کروڑ روپیہ جو 2019 میں بچے گا. منسٹری آف مائنورٹی افیئرز مختار عباس نقوی صاحب نے کل اس بات کی تصدیق جو ہے وہ کر دی گئی ہے. اور اس طریقے سے جموں شہر سری نگر یعنی کشمیر کے ایئرپورٹ سے, شیخ العالم انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے جو لوگ مدینہ شریف یا حج بیت اللہ کے لیے جانا چاہتے ہیں ان کے لیے اب سفری کرایہ جو ہے وہ 11,377 روپیہ ہوگا. 11,377 روپیہ ہوگا. 11,377 روپیہ وہ ہوگا. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر احمد آباد کی ہم بات کریں تو 7,305 روپیہ, اورنگ آباد سے 9,397 روپیہ, گیا سے 11,027 روپیہ, حیدرآباد سے 7,204 روپیہ. اور اس طریقے سے ریٹ جو ہے وہ ہر ایک سٹیٹ کے اندر اپنے اپنے طریقے سے جو وہ دے دی گئی ہے. لیکن جموں کشمیر کے اندر بھی ریٹ جو ہے ایئر فیئر جو ہے حج کے حوالے سے وہ کم کر دیا گیا اور 11,377 روپیہ جو ہے وہ کر دیا گیا ہے. مائنورٹیز افیئرز منسٹر جو ہے انہوں نے کل اس بات کا بھی اعلان کیا کہ کل کل 2,300 یعنی 2,300 خواتین جو ہے وہ اس سال حج کے لیے جائیں گی اور یہ حج پر جانے کا سلسلہ جو ہے یہ بنا محرم کے جانا ہوگا. یعنی لگاتار حج اپلیکیشن جو تھی وہ آ رہی تھی اور اب معاملہ جو ہے وہ بنا محرم کے جو ہے وہ حج کے لیے بھی جا سکتی ہیں اور 2,300 افراد جو ہے خواتین جو ہے وہ حج کے لیے جا سکتی. کیا کچھ مائنورٹیز افیئر منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں ذرا آپ کو فٹافٹ یہ سناتے ہیں, اس کے بعد بڑی خبر جو آ رہی ہے وہ پنچ راجوری سے آ رہی ہے. لیکن پہلے ذرا مائنورٹیز منسٹر جو حج سے ریلیٹڈ ایکٹیویٹیز ہیں ان کو جو ہے وہ بہت اس میں مدد ملے گی. فرینڈز, اس بار جو ہے وہ بہت ایک شبھ میں مانتا ہوں کہ ابھی تک کی جانکاری آئی ہے, اس میں لگ بھگ اس بار جو ہے مور دین 2,300 بنا محرم کے مہیلائیں حج پر جا رہی ہیں, جو پچھلی بار 1,300 تھیں. اور پردھان منتری جی نے نردیش دیا تھا پچھلی بار کہ جو مہیلائیں بنا محرم کے حج کے لیے اپلائی کر رہی ہیں ان کو لاٹری سے باہر رکھ کر کے اور ان کو سب کو الاؤ کیا جائے. تو اس بار بھی ہم یہ 2,300 مہیلائیں جو بنا محرم کے جانے والی ہیں ان کو ہم اس میں الاؤ کر رہے ہیں, سبھی کو بنا لاٹری کے. اس کے ساتھ ہی ساتھ اس بار ایک اچھی اور چیز ہے کہ پچھلی بار میکزیمم جو لوگوں نے مہیلاؤں نے اپلائی کیا تھا وہ کیرل سے کیا تھا اور کچھ جگہوں سے چھٹ پٹ ہوا تھا, لیکن اس بار جو ہے وہ پورے دیش سے الگ الگ, اتر پردیش سے بھی, بہار سے بھی, راجستھان سے بھی, چھتیس گڑھ سے بھی, مدھیہ پردیش سے بھی, مہاراشٹر سے بھی, کیرل, سبھی جگہوں سے, جو دلی سے بھی, سبھی جگہ سے اپلائی مہیلاؤں نے کیا ہے. اور ہم وہاں پر جو ہے وہ ان کے ٹھہرنے کی الگ سے ویوستھا کرتے ہیں اور کریں گے اس بار بھی. مائنورٹیز افیئرز منسٹر حج 2019 کے حوالے سے تفصیلات فراہم کر رہے تھے اور بتا رہے تھے کہ بنا محرم کے 2,300 خواتین اس سال حج بیت اللہ کے لیے جا سکتی ہے اور جی ایس ٹی کے ختم ہونے کے ساتھ یعنی جی ایس ٹی کا شرح کم ہونے کے ساتھ ہی شرح کرایہ میں بھی کمی ہوئی ہے اور اس بار 3 مہینے پہلے ہی ارینجمنٹ جو ہے وہ فائنل کر دیے گئے ہیں. اب ذرا بڑی خبر,
ब्रेकिंग न्यूज जो इस वक्त आ रही है वो एक बार फिर सरहद से आ रही है, जहां पर पाकिस्तान की तरफ से बिला इश्तियाल फायरिंग का सिलसिला एक बार फिर शुरू हो गया है। जम्मू कश्मीर से खबर आ रही है कि पाकिस्तान ने पुंछ सेक्टर के अंदर बिला इश्तियाल फायरिंग का सिलसिला शुरू किया हुआ है। बड़ी खबर इस वक्त पुंछ के खड़ी करमाड़ा में झड़प, हथियारों के जो छोटे हथियारों का इस्तेमाल पाकिस्तान की तरफ से जो है वो किया जा रहा है और इलाके में काफी खौफ और दहशत इस वक्त पाई जा रही है। बड़ी खबर पुंछ से, जहां पर पाकिस्तान की तरफ से बिला इश्तियाल फायरिंग का सिलसिला शुरू किया गया और दिफाई और अस्करी ज़राया के मुताबिक हमारे अफवाज की तरफ से भी यहां से भी अब पाकिस्तानी गोलाबारी का जवाब शुरू किया गया है। बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से, जहां पर सरहदी तनाव लगातार जारी है और साल 2018 में भी इसी तरीके से पुंछ, रजौरी और इंटरनेशनल बॉर्डर के मुख्तलिफ इलाकों पर लगातार पाकिस्तान की तरफ से बिला इश्तियाल फायरिंग का सिलसिला शुरू किया गया था और स्नाइपर का इस्तेमाल करके फौजी जवानों को निशाना बनाया गया था। वहीं पर 2019 में भी यह सिलसिला लगातार जारी है और पिछले कई दिनों से पुंछ, रजौरी और इन सभी सेक्टर्स के अंदर पाकिस्तान की तरफ से बिला इश्तियाल फायरिंग की जा रही है। हमारे साथ हमारे साथी इस वक्त जमशीद मलिक ज्वाइन कर चुके हैं। जमशीद, क्या कुछ ताजा तरीन खबर आपके पास है? कितने बजे शेलिंग शुरू हुई और अभी की क्या कुछ सूरत हाल है? जी गौर जी, आज सुबह तकरीबन 4 बजे के आसपास पाकिस्तान की जानिब से एक बार फिर नाजंग माहिदे की खिलाफ वर्जी करते हुए पुंछ के खड़ी करमाड़ा इलाके में फौजी चौकियों को निशाना बनाया जा रहा है, जिसमें जो तकरीबन 4 से 6 बजे तक मुसलसल इसमें काफी शिद्दत देखने को मिली और उसके बाद अभी भी ये वक्फे से पाकिस्तान की तरफ से गोलियों का सिलसिला जारी रखे हुए है। इससे पूरे इलाके में डर व खौफ देखने को मिल रहा है, क्योंकि 2018 के मुकाबले में 2019 ज्यादा कशीदा नजर आ रहा है, जिसमें 1 जनवरी से लेके आज तक अगर हम बात करें, पहले माह की बात करें तो इसमें तकरीबन 3 से 4 हलाकतें इस वक्त तक हो चुकी हैं, क्योंकि लाइन ऑफ कंट्रोल पर हालात काफी कशीदा बने हुए हैं, क्योंकि पिछले 2 या 3 रोज से पाकिस्तान ने इंटरनेशनल बॉर्डर के साथ साथ लाइन ऑफ कंट्रोल पर भी भारी गोलाबारी का सिलसिला जारी रखे हुए। अगर बात करें हम नौशहरा की, तो 4 या 5 रोज पहले नौशहरा में एक माइन ब्लास्ट में एक फौजी अफसर के साथ एक जवान भी हलाक हुआ था। वहीं पाकिस्तान की गोलाबारी में एक पोर्टर भी हलाक हुआ और कल इंटरनेशनल बॉर्डर पर भी एक हलाकत हुई है। इस तरह अगर 2019 की बात करें तो पाकिस्तान की जानिब से लगातार ही गोलाबारी का सिलसिला जारी रखे हुए, जो इस बार लग रहा है कि 2018 के मुकाबले में 2019 ज्यादा ही कशीदा नजर आ रहा है, क्योंकि पूरे लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाकिस्तान की जानिब से वक्फे से गोलाबारी का सिलसिला शुरू किया जाता है। जिस तरह अगर हम आज सुबह की बात करें तो सुबह जिस तरह खड़ी करमाड़ा में फायरिंग की गई है, इससे एक बार फिर लग रहा है कि पाकिस्तान के 2019 में भी इसी तरह के हालात देखना चाहता है, क्योंकि लोगों में काफी डर व खौफ देखने को मिल रहा है और पाकिस्तान की जानिब से लगातार ही गोलाबारी का सिलसिला जारी है। ये बताइएगा, क्या कोई अभी की कोई कैजुअलिटी की कोई खबर तो नहीं है? जी घोष जी, अभी तक किसी जानी माली नुकसान की खबर नहीं है, मगर जिस तरह की गोलाबारी का सिलसिला जारी है, इससे थोड़ी देर में मजीद हम इससे तफसीलात बताएंगे अपने। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। फिलहाल खबर यह है कि पाकिस्तान की तरफ से बिला इश्तियाल फायरिंग का सिलसिला लगातार पुंछ सेक्टर के अंदर जारी है, जिसका जवाब भी दिया जा रहा है। मजीद तफसीलात के लिए आपको हमारे साथ बना रहना पड़ेगा, क्योंकि आगे यानी हम अपनी नशरियात में आपको बताएंगे कि क्या कुछ वहां पर हो रहा है। मंगलवार को भी हमने देखा था कि नौशहरा, कलाल से लेकर गुलपुर, पुंछ यानी लाइन ऑफ कंट्रोल से लेकर इंटरनेशनल बॉर्डर तक गोलियों की आवाज से एक बार फिर कई इलाके दहल उठे थे और एक असिस्टेंट कमांडेंट को भी पाकिस्तानी स्नाइपर्स की तरफ से आरएस पूरा का जो सेक्टर है वहां पे निशाना बनाया गया था। तो कल दिन खामोशी रही, लेकिन आज सुबह जैसे ही लोगों की आंख खुली तो एक बार फिर से गोलीबारी का सिलसिला दोबारा देखने को मिला। चलिए, अब जरा आते हैं अपनी बड़ी खबर की और खबर जरा करेंगे, क्योंकि चुनाव 2019 हमारे सामने है और 2019 में अगर हम पूरे मुल्क की बात करें तो पार्लियामेंट, लोकसभा के अंदर चुनाव होने जा रहे हैं और जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर को भी रिप्रेजेंटेशन है, चाहे नॉर्थ की हो, साउथ की हो, सेंट्रल की हो, जम्मू की हो, हर तरफ से पार्लियामेंट मेंबर जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं और हर एक पार्लियामेंट मेंबर को अपना सीडीएफ है। हर एक पार्लियामेंट मेंबर के लिए कॉन्स्टिट्यूएंसी को डेवलप करने के लिए मुख्तलिफ स्कीम्स जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से दी गई हैं। वो स्कीम्स क्या इंप्लीमेंट हो रही है,
हुई हैं, क्या कुछ हुआ है, हम आपको डिटेल में एक एक करके शुरुआत में आज से जो है हम शुरू कर रहे हैं तो हम बताएंगे आपको। लेकिन आज जरा बात करते हैं हम एक उस स्कीम की जिसको लेकर वजीर आजम साहब ने मन की बात प्रोग्राम में कहा था और कहा था कि मुझे उम्मीद है कि जितने भी सांसद हमारे हैं, जितने भी पार्लियामेंट में बैठने वाले मेंबर्स हैं, वो कम से कम हर साल एक गांव को अडॉप्ट करेंगे और उसको एक मॉडल विलेज के तौर पर बनाएंगे। एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट था, एक अच्छा कॉन्सेप्ट था कि हर एक पार्लियामेंट मेंबर एक गांव को अडॉप्ट करता, एक साल में उसको डेवलप करता और एक मॉडल विलेज के तौर पर उसको बनाता। और इस स्कीम को पूरे इंडिया के अंदर इंप्लीमेंट होना था, जम्मू कश्मीर के अंदर भी इंप्लीमेंट होना था। आज जो हम बात करेंगे, हम करेंगे मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन प्राइम मिनिस्टर ऑफिस जो हमारे हैं उनके पूरे असेंबली सेगमेंट, कॉन्स्टिट्यूंसी सेगमेंट की करेंगे, डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब के सेगमेंट की करेंगे, क्योंकि उनका उधमपुर कठुआ डोडा कॉन्स्टिट्यूंसी है। ये जो पूरा बेल्ट है काफी इंपॉर्टेंट बेल्ट है और वहां पर बहुत से एरियाज है जिन्हें डेवलप करने की जरूरत है, इसमें कोई शक नहीं, थोड़ा सा काम जरूर हुआ है। लेकिन आज जिस स्कीम की हम बात कर रहे हैं वो है कि क्या मेंबर मौसूफ ने जिन गांवों को अडॉप्ट किया था क्या वो वाकई तौर पर डेवलप हो पाए हैं या नहीं। तो हम आपको बताते चले कि मेंबर मौसूफ और वजीर ने जो गांव डेवलप करने की बात कही थी वो दरअसल साल 2014 के बाद का मामला है, जब साल 2014 में सैलाब आया था कश्मीर के अंदर और जम्मू के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर भी जबरदस्त सैलाब आया था। उसकी वजह से बहुत से इलाकों के अंदर नुकसान हुआ था और 6 सितंबर 2014 को 40 लोग जिंदा दफन हो गए थे, दरगोर हो गए थे, लैंडस्लाइड्स हुए थे एरियाज के अंदर। बाद में बड़ी मुश्किल के साथ उनको बचा लिया गया, कुछ लोगों को लिए, कुछ लोग मर गए और कुछ लोग आज भी जो है वो मिसिंग है, उनकी बाडियां आज भी नहीं मिली है। और तकरीबन 4.5 साल का वक्त गुजरने के बाद फिर डॉक्टर जितेंद्र सिंह इस इलाके के अंदर चले गए जिसका नाम जो है सडल पंजनारा इलाका है और इस इलाके को डेवलप करने की बात जो है उन्होंने कही और 135 हटमेंट और 135 टॉयलेट बनाने की बात जो है उन्होंने कही और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को कहा कि प्लान को एग्जीक्यूट करवाया जाए। सडल पंजनारा इलाका जो है ये पहले साल के दौरान इन्हें ही अपने हाथ में लिया इन्होंने इस प्रोग्राम को और जब इसको आगे बढ़ाने की बात आई तो जो ग्राउंड रियलिटी है वो ये है कि आज के दिन भी ये पूरी तरह से डेवलप नहीं हुआ है। और जिला तरक्याती कमिश्नर के दफ्तरी रिकॉर्ड को जब हम देखते हैं तो मालूम पड़ता है कि सडल का इलाके के अंदर कोई भी प्लान जो है वो सेंटर की तरफ से इनिशिएट नहीं किया गया और ना ही कोई सेंट्रल प्लान या फंड उन्हें मिला है। ये रिपोर्ट बता रहे हैं हम डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस से जो हमारे पास जरा से खबर है। इसके साथ साथ वजीर ममलिकत, साबिक वजीर ममलिकत जो है और एमएलए जो उधमपुर के पवन गुप्ता, उनकी तरफ से यह बात सामने रखी गई कि काफी मुश्किलें इस इलाके के अंदर रहने वाले लोगों को हो रही है क्योंकि सरकार की तरफ से वादा तो किया गया, कभी वफा नहीं किया गया और बहुत बार उन्हें हटाया गया बसाया गया जिसकी वजह से उनकी जिंदगी जो है वो अजीरन बन गई है। और इसी तरीके से उनका यह भी मानना है कि जो राशन है 6 महीने बाद 1 महीने का राशन दिया जाता है और यह कहा जा रहा है कि आपको फ्री राशन भी दिया जा रहा है। यानी सरकार की तरफ से जो स्कीम इंप्लीमेंट की गई थी कि हम एक मॉडल विलेज बनाएंगे और उसको डेवलप करेंगे, पहले साल में एक गांव को लिया गया था, वो डेवलप हुआ नहीं। इसके बाद जो गांव लिए गए वहां पर 20-30% तो काम हुआ है, ऐसा नहीं बिल्कुल नहीं हुआ, 20-30% काम हुआ है, लेकिन जो एक साल में डेवलप होना था नहीं हो पाया। जवाब लोग मांगेंगे क्योंकि 2019 का चुनाव हमारे सामने है। बिल्कुल, इनमें कुछ गांव ऐसे भी थे जो पूरी तरह से इस बाढ़ में साल 2014 में जो सैलाब आए थे उनमें पूरी तरह यहाँ पे सड़कों का राब्ता है वो टूट चुका था, कई जगहों पे बिजली के पोल्स गिर गए थे और उसके बाद जो सरकार की तरफ से ये कहा गया था कि एक तो जो सड़कों का राब्ता है वो इन अगले 3 सालों में पूरा किया जाना चाहिए और साथ ही साथ एमपीज को जिस तरह के हमने आपको पहले भी बताया उनको कहा गया था कि एक एक गांव को अडॉप्ट करना है, मॉडल विलेज के तौर पर उसको पेश करना है, बनाना है, उसमें तरक्की याफ्ता जो काम है वो शुरू किए जाने चाहिए। लेकिन अभी भी जो 60 करोड़ टॉयलेट्स बनने थे, जो एक लक्ष्य रखा गया था, एक टारगेट था सरकार का 5 सालों में, उनमें बहुत सारे ऐसे जम्मू कश्मीर के गांव भी थे। लेकिन इस पिछले 1 साल की बात करें तो कई गांव ऐसे हैं दूर दराज के इलाके जहां तक इन स्कीमों के तहत लोगों तक पैसा ही नहीं पहुंच पाया है।
चलिए अब जरा बात करते हैं एजुकेशन की, क्योंकि एजुकेशन पर भी हम अपनी पीठ थपथपाते हैं और जब रिजल्ट सामने आते हैं तो मुख्तलिफ लोग सामने आते हैं और कहते हैं कि भैया हमने काम कर लिया, हमारा सिस्टम जो है वो सबसे अच्छा है। लेकिन इस अच्छे सिस्टम की पोल जो है वो एक सर्वे रिपोर्ट ने खोल दी और एनजीओ की तरफ से लगातार हर 2 साल के बाद सर्वे रिपोर्ट आता है और उस सर्वे रिपोर्ट जहां मुख्तलिफ मुल्कों जो मुख्तलिफ रियासतों के अंदर बात होती है, न सिर्फ जम्मू कश्मीर की बात होती है बल्कि मुख्तलिफ स्टेट्स की बात होती है। चूंकि ये प्रोग्राम स्पेसिफिक है जम्मू कश्मीर के लिए, इसलिए हम सिर्फ जम्मू कश्मीर की बात करते हैं। तो जम्मू कश्मीर के हवाले से ये रिपोर्ट जो है, ये प्रथम नामी एनजीओ जो है, इनकी तरफ से जो रिपोर्ट सामने रखी गई है, ये दिल को दहला देती है, अक्ल को सवाल खड़ा कर देती है उन अरबाब इख्तिदार के लोगों पर जो पॉलिसियां बनाते हैं, उन लोगों पर जो बड़े बड़े फोटो अपने ट्विटर हैंडलर्स पर चढ़ाते हैं और बताते हैं कि देखिए हमारे स्कूल इतने बेहतर है, मॉडर्न है, इक्विप्ड है। सरकारी सतह पर मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि सरकारी सतह हमेशा तनकीद का निशाना बना है जम्मू कश्मीर के अंदर। रिपोर्ट जो बताती है वो ये बताती है कि तीसरी जमात का बच्चा जो जम्मू कश्मीर के अंदर रह रहा है और सरकारी स्कूल के अंदर है, अगर उसे दूसरी क्लास का यानी क्लास 3rd में बच्चा पढ़ता है, अगर उसको 2nd क्लास का कोई किताब दें और उसे कहें कि ये पढ़े, वो नहीं पढ़ सकता है। प्रथम की रिपोर्ट सामने आई है और सरकार की पोल खोल दी है कि हमारा सिस्टम ऑफ एजुकेशन इतना खतरनाक हो गया है, हम क्लास के बाद क्लास तो चढ़ा देते हैं, लेकिन बच्चा अपना सब्जेक्ट तो दूर जो उसने पास आउट किया है, यानी अगर वो फर्स्ट प्राइमरी से 2nd प्राइमरी में आया तो फर्स्ट प्राइमरी की किताब वो नहीं पढ़ सकता है, अगर वो इस वक्त 3rd में है तो 2nd प्राइमरी की किताब वो नहीं पढ़ सकता है। एनुअल स्टेट रिपोर्ट जो है वो 2018 की प्रथम एनजीओ की रिलीज हो गई है, उसका एक पन्ना ये कहता है और दूसरा पन्ना ये कहता है कि जो 13th रिपोर्ट उनकी आई थी साल 2012 में, उसमें यह कहा गया था कि तीसरी जमात के जो बच्चे हैं गवर्नमेंट स्कूलों के अंदर, वो दूसरी जमात के बच्चों की किताब नहीं पढ़ सकते हैं। 10:9 रेशियो था, लेकिन ये रेशियो अब जो है 5:4 हो गया है। यहां पर सवाल उठते हैं, 10:9, हर 10 में से 9 बच्चे नहीं पढ़ सकते थे। अब इन्होंने जरा इसको और एक इलॉबरेट करके देखा, 5 में से 4 बच्चे भी नहीं पढ़ सकते हैं, एक ही पढ़ सकता है। तो हमारा निजाम तालीम कहां पर है, सवाल ये एक है। अब इसी रिपोर्ट की दूसरे पन्ने को जब आप खंगालेंगे तो पता लगेगा कि जम्मू कश्मीर के सरकारी स्कूलों के अंदर जो बच्चे 4थी जमात के अंदर पढ़ते हैं, वो 5वीं जमात के जो 4थी जमात में पढ़ते हैं वो तीसरी जमात की किसी किताब को नहीं पढ़ सकते हैं और उनको ABCD और जो बेसिक लाइन है एजुकेशन की 4th के 5th के अंदर, उन्हें वो पता ही नहीं है। और 80% बच्चे हमारे ऐसे हैं जिन्हों प्लस माइनस का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। 3rd, 4th, 5th के अंदर 80% बच्चे ऐसे हैं जो प्लस माइनस डिवीजन नहीं कर सकते हैं और 5th to 7th ऐसे हमारे 5, 6 और 7 क्लास के बच्चे ऐसे हैं जो 75% बच्चे हैं जिन्होंने सिंपल डिवीजन, डिवाइड, तफरी जिसे हम कह रहे हैं, नहीं करना आता है। प्रथम की रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट का जवाब क्या सरकार देगी? क्या सरकार में बैठे जिम्मेदारान जो ये बताते हैं कि हमारा निजाम तालीम सबसे बेहतर है, क्या आज खुलकर बात करेंगे? हमने बड़ी कोशिश की थी कि माहिर तालीम से बात करें या उन लोगों से बात करें जो जिम्मेदारान हैं, लेकिन बात हो नहीं पाई, या उन्होंने ये कहा कि वो पहले रिपोर्ट को देखेंगे। रिपोर्ट हमने आवाम के सामने रख दी और सवाल हम पैदा आज कर रहे हैं ये कि अगर हमारे आने वाले नस्लें इस तरीके से आगे बढ़ेंगी तो हमारा मुस्तकबिल कैसा होगा? एक तो ये सवाल है। दूसरा सवाल ये है कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में निजाम तालीम काफी बेहतर है, लेकिन सरकारी निजाम क्या इतना अफसुर्दा हो गया है, क्या इतना खराब हो गया है कि ये ठीक ही नहीं हो सकता है, जबकि सबसे आला तालीम याफ्ता उस्ताद हमारे इन्हीं इदारों के अंदर है। तो खामी कहां पर है, ढूंढने की जरूरत है और यह बड़ा सवाल आपके सामने हम छोड़ के चले जाते हैं, क्योंकि सरकार की तरफ से जवाब देने के लिए कोई तैयार ही नहीं है। अब ये तो तालीम का हाल है, चलते चलते खेल भी आपको बताएंगे, क्योंकि खेल की दुनिया से भी खबर यही है कि शोर ज्यादा है, काम कम है। बताएंगे आसिफ। बिल्कुल, मैं शुरुआत करूंगा क्रिकेट से। सबसे पहले रणजी ट्रॉफी चल रही है और रणजी ट्रॉफी में जम्मू कश्मीर की जो क्रिकेट टीम है उसका भी हाल बुरा ही है और सिर्फ 19 पॉइंट्स के साथ अब जो है अगले दौर में दाखिल होना। ग्रुप डी में है इस वक्त जम्मू कश्मीर की टीम, उसके लिए मुश्किल हो गया है। 19 पॉइंट और 8 में से 3 मैचेस जीते हैं, जबकि 5 मैचेस टीम हारी है और इन 5 मैचेस में ऐसे मैचेस भी हैं जो जम्मू के साइंस कॉलेज के साथ जो बना स्टेडियम है
वहां पर भी उस साइंस कॉलेज स्टेडियम में यानी अपने मैदान पर भी टीम हारी है। जाहिर सी बात है स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर भी खिलाड़ियों ने सवाल उठाए थे। उसके बाद सीधा रुख करेंगे कश्मीर वादी का, जहां पे 3 साइकिलिस्ट ऐसे हैं जो नेशनल लेवल पे इस वक्त स्टेट का परचम फहरा चुके हैं, जिनमें इससे पहले वहीद अहमद खान और बिलाल अहमद डार जो इस वक्त इंटरनेशनल लेवल को जाने के लिए वहां तैयार हैं। और उनकी बात मैं करूं, साल 2017 और 18 में 4 बार यानी उन्होंने स्कूल लेवल पे, उसके बाद जो कॉलेज लेवल है वहां पे जाके, और उसके बाद दिल्ली, केरला और बेंगलोर में 3 मेडल्स अपने नाम किए, जबकि साल 2018 में दोबारा एक गोल्ड मेडल जीतकर स्टेट का नाम रोशन किया। लेकिन अब एक और बड़ा नाम सामने आया है, वहीद अहमद गनई, जो कि बडगाम के रहने वाले हैं और नेशनल साइकिल चैंपियनशिप में पिछले 3 सालों से लगातार इनकी जो कोशिशें जारी है उसका नतीजा आहिस्ता आहिस्ता सामने आ रहा है और एक बार फिर इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। और हाल ही की बात करें तो इंदौर, केरला और दिल्ली से इन्होंने ये मेडल्स अपने नाम किए। लेकिन इनकी तरफ से एक और शिकायत जो अक्सर हम आपको अपने प्रोग्राम में बताते हैं, जो अगर कहीं पे स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखानी हो या जो हमारे स्टेट के प्लेयर्स हैं उनको बेहतर स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदान करने की बात हो, तो वहां पर एक बार फिर हम पीछे रह जाते हैं बाकी स्टेट्स के मुकाबले। और यही वहीद अहमद गनई जो एक बार फिर ये अब स्टेट से बाहर निकले हैं तो उन्हें पूरी फैसिलिटीज दी जा रही हैं, लेकिन उनने साफ तौर पे कहीं ना कहीं उनका जो बातें हैं, जो बात करने का लहजा था या उसमें जो खुलकर जो चीजें सामने आई है वो स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर और साइकिलिंग को लेकर एक साइकिल क्या कुछ वहीद कहते हैं, जरा नाज़रीन को डायरेक्टली सुना लेते हैं पहले कि क्यों वो नाराज है। यार कितना इवेंट्स है, मास स्टार्ट किसे बोलते हैं, इंडिविजुअल टाइम ट्रायल। तो फिर मैंने वहाँ बड़े बड़े प्लेयरों से पूछा है, तो उन लोगों ने मुझे थोड़ा गाइड किया है। तो वैसे ही मैं घर आया था, बाप से भी बात किया था, उन्हें साइकिल जरूरी है इसमें। तो उसके बाद घर वालों ने भी साइकिल थोड़ा अरेंज किया था 50-60 हज़ार तक यहाँ तक पहुँचने के लिए। तो मैंने बहुत से मुश्किलों का सामना करना पड़ा, क्योंकि इस पे थोड़ा सीनियरिटी भी जरूरी थी, कोच नहीं है हमारे पास, तो उसके लिए भी सीखना, और साइकिल का मैकेनिक भी नहीं था। इंटरनेशनल लेवल पे पहुंचने जा रहा है लेकिन पैसे साइकिल खरीदने के लिए नहीं है और कोच नहीं है। बड़ा सवाल यह है कि हाँ, न कोच है न इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेकिन अपने बलबूते पर अपने इरादे को मजबूती के साथ आगे बढ़ाते हुए इस नौजवान ने रियासत का नाम ऊंचा किया। फिलहाल प्रोग्राम में आज हमारे साथ इतना ही। 2 बजे खेल दुनिया में यानी जो हमारा सिस्टम है क्या कुछ कह रहा है स्पोर्ट्स पर, इस पर डिटेल के साथ डिस्कशन होगा 2 बजे। आप हमारे साथ बने रहिएगा। 2 बजे हम बात करेंगे खेल और खिलाड़ी की और रियासत के अंदर खेल की सियासत की, शतरंज 2019 के हवाले से। लेकिन फिलहाल प्रोग्राम सलाम जेके में मेरे साथ बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। अल्लाह हाफिज।